This is a very important topic, that is data interpretation. And this topic carry very good weightage as far as all competitive exams are concerned. Data interpretation. So basically, what we have to do here, data means what you had given some information, and you have to understand that particular information. And by understanding that particular information, you have to answer the question based on it. Okay, now this particular information is given in the form of a presentation, like sometimes they will give you graphs, sometimes it is given in the form of pie chart, and nowadays you can see this information is given in the form of caselets. Okay, some information is given in the form of paragraphs. You have to understand that particular information, and you have to answer the questions based on that. Now, whenever you will come across the questions on this particular data interpretation, these questions are from they are just asked to check your numerical ability skills. That is, for example, most of the questions are from percentage. और percentage ये हमने देखा है, percentage we use in our day-to-day life also. Some questions, one or two questions on average. Okay, and we know how to find the average. Average is nothing but sum of information or sum of numbers divided by number of numbers. So this is the formula we use for finding the average. So there are some questions on average also, and there is again question on ratio. So to build the ratio between two and more quantities, ratio proportion ये topic हमने पढ़ा है. Ratio is nothing but ratios are used to do the comparison of two or more things. Yes or no? So these are the type of the questions asked on जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा वो इंफॉर्मेशन पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Percentage, average ratio, and these are basic numerical skills. Now, as far as percentage are concerned, तो देखो ये हम करेंगे ही, लेकिन उसके पहले परसेंटेज पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. ओके, suppose if I'm asking you now, x is a what percent, x is what percent of y, percent of y. So this is a typical type of the case asked in the case of percentage. So whenever you come across this kind of a percentage question, then your required percentage will be always equal to whatever is coming after of will be in denominator, and up before of जो भी आ रहा है that will be your numerator. And since you want to put the percentage sign, we will have to multiply it by 100. So this is the required percentage when you come across this kind of a standard form. So just take a note of this. X is the what percent of y. Then the required percentage will be x upon y multiplied by 100. For example, if I'm asking you 30 is what percent of 30 is what percent of 40. Okay, so if I want this particular question, then your required percentage in this case will be, you have to compare this 30 with 40. So जिसको off के बाद जो आएगा that will be your denominator and the first part will be your numerator. So 30 upon 40 multiplied by 100. Now if you divide this 30 upon 40, that will be equal to 75%. So these zeros will get cancelled. 3 by 4, that is 75%. So this is the first type of the questions we come across in the percentage question. Now second question यहाँ पे पूछा जाता है, that is x is what percent more or less than y. Okay, so x is what percent more or less than y. So what is happening here? Again, comparison of x with respect to y is happening here. So this than is used for doing the comparison. In this particular case, your required percentage will be equal to x minus y divided by y. जिसे compare करना है वो denominator में जाएगा and multiply this by 100.
Now, if this value of x is more than y, this subtraction will be positive. So अगर positive आता है, तो your answer will be percentage more. And if it is negative, then it will be percentage less. So I request you to just take a note of this particular case also. These are the most typical cases asked in the questions of data interpretation. और जहां तक मैं आपके एग्जाम्स का एनालिसिस कर रहा हूं, तो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे पूछे जाते हैं, और मेजर फोकस होता है परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। मेजर फोकस होता है परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। एंड सेकंड चैलेंज यहाँ पे डेफिनेटली ये रहता है कि फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय 100। फ्रैक्शंस अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो ठीक बात है, अगर नहीं सिंपलीफाई हो रहा है तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकालने का प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ऑप्शंस की हेल्प लेके और अप्रोक्सीमेट आंसर्स लेके आप सही ऑप्शंस तक विदाउट डूइंग कंप्लीट कैलकुलेशन आप पहुंच सकते हो। यहाँ तक का पार्ट आपको अगर समझ में आया होगा तो से यस इन कमेंट बॉक्स। और टाइम बीइंगली कभी कभी व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी जाते हैं अगर आपका प्रैक्टिस सही मायने में नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस इज द की हियर। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा महसूस होगा कि क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े से लेंथी है, लेकिन क्वेश्चंस अगर हम पढ़ते हैं ठीक से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन एंड we will do some work simultaneously. Now, ideally, when you are doing this kind of a questions in exam, तो आपको 7 to 8 मिनट्स अगर आप इस पर्टिकुलर को क्वेश्चंस को दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा टाइम है, वैलिड टाइम है, और ये इतना टाइम उसको लगेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करके हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन 7-8 मिनट्स इज ओके। नाउ व्हाट इज सेड इन द this is the caselet kind of data interpretation. ये caselet है। Automobiles are the most preferred mode of transport because they allow us to cover the large distance quickly. Resultantly, vehicles have been developed that run on diesel, petrol, and even on electric. तीन तरह के ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स है उसके बारे में बात चल रही है, डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल, विच इज रिमार्केबल innovative development. During a survey about the percentage-wise distribution of the cars in the four states. Now, percentage-wise distributions of the cars in the four states. The information regarding to the diesel engine cars, petrol engine cars, and the electric cars were collected, and the total numbers of vehicles which the data was collected is 8,000. So this is very important information. कितने कार्स का ये डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है? 8,000 कार्स का इंफॉर्मेशन किया है। देखो, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, और चार्ट बनाते वक्त मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा स्टेट वन, देन स्टेट टू, देन स्टेट 3 एंड स्टेट 4। ओके, स्टेट 4। ओके, नाउ ये हर एक स्टेट में कितने कार्स है ये हमें पता नहीं है, और उसमें तीन तरह के आपको इंजिन्स दिए गए हैं। उसमें पहला है आपका डीजल, देन पेट्रोल, एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, नाउ चलो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लिखते भी जाएंगे। नाउ ऑफ दिस स्टेट्स वन 15% ऑफ द टोटल कार्स, 15% ऑफ द टोटल कार्स। चलो कैलकुलेशंस करना शुरू कर दो। टोटल कार्स आपके हैं 8,000। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। देखो, 8,000 का 15% हमें निकालना है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल के आ जाएगा 1200। ये निकल के आ जाएगा 1200। So there are 1200 cars in state one, 1200 cars in state one. Now, uh, and in what ratio? 3:4:1। और देखो रेशियो का सीक्वेंस कैसा है, डीजल फर्स्ट, पेट्रोल एंड देन इलेक्ट्रिकल। सो 3:4:1। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ डीजल कार, पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार निकालने पड़ेंगे। निकालने के बाद में स्टेट टू में क्या सीन है, 20% ऑफ टोटल कार। सो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, अगर आप करते हो तो दिस इज इक्वल टू 1600।
So there are 1600 cars in state 2. In what ratio they are given? That is 5 to 3 to 2. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है. Now, in state 3, there are 30%. So, 8,000 का 30% निकाल लो my dear friend. 8,000 का 30% अगर निकालोगे तो वो 2,400 होगा. So, in state 3, there are 2,400 cars. In what ratio? 4 S to 5 S to 3. So, this is the ratio. And in state 4, there are 35% cars. So 8,000 का 35% निकाल लो तो 2,800 will be the total number of cars and they are in what ratio? They are in ratio 7 as to 5 as to 2. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो एक बार मेंशन yes in the comment box. Now, what I will do next? अभी मैं ये यहाँ पे जगह बना लेता हूँ. Okay. So what we will do next? Based on the ratio, we will decide the total number of cars now. हम cars से decide कर लेंगे. हम cars decide कर लेंगे. Okay. तो यहाँ पे मैंने एक फिर से ये यही statistics में यहाँ पे लिख रहा हूँ. So cars, diesel cars. Okay. हम यहाँ पे लिखेंगे. यही पे लिख देंगे हम. Diesel cars. यहाँ पे पेट्रोल कार और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार. अब देखो ये करने के लिए तन्वी हम क्या यूज कर सकते हैं? व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस? 3 4 एंड 1 का टोटल हो गया 8. नाउ डिवाइड दिस 1200 बाय 8. 1200 को अगर 8 से डिवाइड करते हो तो एक रेशियो का एक जो यूनिट है उसका वैल्यू आएगा 150. तो डीजल कार के 3 पार्ट्स है तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 450 डीजल कार्स. नाउ पेट्रोल कार्स 4 पार्ट्स का है. वन पार्ट की वैल्यू 150 है तो 4 into 150 दैट इज 600. इलेक्ट्रिक कार 1 है तो दैट मींस 1 यूनिट इज 150. नाउ इसी तरह से हमें स्टेट 2 में कार्स निकालना है. स्टेट 2 का टोटल ये रेशियो की टोटल कितना हो रहा है? 2 + 3 + 5 दैट इज 10. डिवाइड दिस बाय 10. सो इस पर्टिकुलर केस में एक यूनिट का वैल्यू 160 हो जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय 160. So you will get 800 cars here, diesel car in state 2, then 480 cars, petrol cars in state 2, and 320 electric cars in state 2. I hope you are getting this. Now, यहाँ पे क्या करोगे अभी? 4 + 5 + 3, 4 + 5 + 3 कितना हो गया? This is 12. This is 12. 12 से डिवाइड कर दो तो एक पार्ट का वैल्यू 200 मिल गया हमें. 12 and 200 अगर मिल गया तो रेशियो के हर एक पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो 200 से. So 800, 1000 and 600. Now similarly, now total of this, इसका भी कितना होगा टोटल? This is 14. अगर इसको 14 से डिवाइड करोगे तो इसका भी कितना आएगा? 200. तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1400, then 1000 and then 400 because 200 into. Now तन्वी यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेंशन yes in the comment box. यहाँ तक अगर Yes, sir. आपको समझ में आ गया होगा तो यस इन कमेंट बॉक्स. अभी इसके बाद हमें सीधा क्वेश्चंस पे जाना है. जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो हमने समझ लिया. समझने के बाद जो कैलकुलेशंस करने जरूरी थे वो भी कैलकुलेशंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं. ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. ओके. ये इंफॉर्मेशन ये वाला सब इंफॉर्मेशन हम कट कर देते हैं. बाकी का इंफॉर्मेशन हम वैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे so that we can able to give the answers of the remaining questions. Okay, good. Now, ये पूरा जो अभी अभी हमने ये दो चार्ट्स बनाए, दो टेबल्स बनाए, इसके लिए अगर आपको 4 या 5 मिनट्स लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेक दैट मच टाइम. 4-5 मिनट्स अगर लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप डेफिनेटली उतना टाइम यहाँ पे दे सकते. देखो अभी क्वेश्चन आ गया यहाँ. Now let us read this question and try to answer. Okay, let us read this question and try to answer. 45% of electric cars of state 4. 45% of electric car of state 4. State 4 में क्या? Electric cars. Okay, कितना 45% है? Now are AC and the remaining are non-AC. Now 45% अगर AC है तो 55% non-AC हो जाएंगे. Non-AC cars. तो हमें पूछा है what is the total number of non-AC cars? Now how many cars are there in state
4, स्टेट 4 में 2800 कार्स है। सो 2800 कार्स के, ओके, और वो कौन से कार? इलेक्ट्रिक कार्स, वेट वेट, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बोला जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक कार्स अगर मैं लेता हूँ, कितने इलेक्ट्रिक कार्स है स्टेट 4 में? 400 है। तो 400 400। 55% निकालना पड़ेगा। सो 55% is nothing but 55 divided by 100. This two zeros will get cancelled, and multiply this 55 by 4. So you will get your answer as 220. So there are 220 cars, electric cars, which are non-AC. Non-AC. देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करना अभी बहुत तकलीफ वाला काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट किया था, उसका हम सीधा सीधा यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2, हाउ मेनी पेट्रोल कार इन स्टेट 2 ऑफ 480 इज हाउ मच मोर देन, अभी भी मैंने बोला था आपको, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। Okay, so what percent more than number of diesel car in state one? Now, पेट्रोल कार कितने स्टेट टू में? 480 है। एंड डीजल कार कितने हैं स्टेट वन में? दैट इज 450। सो व्हाट इज, सो योर रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी, योर रिक्वायर्ड परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू, पेट्रोल कार्स आर हाउ मच मोर? दे आर 30 मोर देन whom, देन के बाद कौन आ रहा है? नंबर ऑफ डीजल कार। सो टेक 450 इन द डिनोमिनेटर एंड सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। सिंपलीफाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 ones are 3, 3 15s are, and 1 by 15, that means 100 upon 15। अगर ये सिंप्लीफिकेशन करते हो माय डियर फ्रेंड, दिस सिंप्लीफिकेशन इज 6.67%। सो द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ये बहुत अच्छी, देखो, ये इंफॉर्मेशन जो हमने किया था, जिसपे हमने बहुत क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर से हमें ये क्वेश्चंस के आंसर करना है। ओके, नाउ लेट अस सी। देयर आर, एक मैंने जो पहले ही बोला था आपको, जो भी एक केस स्लेट या जो भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दिया जाएगा, तो एक प्रेजेंटेशन पे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पांचों के पांचों या छह के छह क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यूज होने वाली है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट टू क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा वक्त भी दूंगा आपको, तो मुझे आंसर देने की कोशिश करो। मैंने दूसरे क्वेश्चंस डिस्प्ले किए हैं। मैंने बोला था आपको, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड मेंशन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मेंशन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Now, what they are saying? What is the ratio of diesel cars? What is the ratio of diesel car in state 4? State 4 में डीजल कार कितना है? देख लो, स्टेट 4 में डीजल कार आपने निकाले तो कितने? 1400 है। ओके, नाउ ये आपका रेशियो का पहला टर्म होगा। एंड इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार्स कितना है? 600 है। तो इन दोनों का हमें रेशियो लेना है बेटा। रेशियो लेते वक्त हम उसको फाइनल सिंप्लीफिकेशन में एक्सप्रेस करते हैं। 1400 एस टू 600, दो जीरोस यहाँ पे भी है, दो जीरोस यहाँ पे भी है, उड़ा दो, रहेगा 14 s to 6। 14 s to 6 इज नथिंग बट 7 s to 3। अगर दो से डिवाइड करते हो तो your correct sequence is 7 s to 3। I hope Tanvi you understood this question। Okay, यस सर। कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। Okay, hardly 10 to 15 seconds you required for this particular question। Now, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाउ, व्हाट इज द, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार्स आउट ऑफ द टोटल कार्स इन द स्टेट। नाउ मुझे पहले बताओ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रिक कार्स आर देयर इन ऑल 4 स्टेट? चारों के चारों स्टेट में कितने इलेक्ट्रिक कार्स है? मुझे बताओ। वी ऑलरेडी फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डीजल कार्स, पेट्रोल कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स इन ईच स्टेट। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज जो भी होने वाला है, रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स डिवाइडेड बाय 8000, because total number of cars are 8000 multiplied by 100। ये सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर होगा। ये यस सिंप्लीफिकेशन सर। हमारा आंसर होगा। तो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रिक कार्स आर देयर? जस्ट ऐड 150, 320, 600 and 400। So what is that total? What is that total? The total is 1470 divided by 8000।
मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो जीरो जुड़ा तो ये दो जीरो कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 147 को 8 से डिवाइड कर दो। एट एट वन जा 8, रिमाइंडर विल बी 6। Okay, very good. Now 8 remainder will be 3. So it is very close to 18.3% का वैल्यू। 18.3% जहां पे भी आपको आंसर मिल रहा है, that is your answer, which is option B. Which is option B. So this is the fourth question we solved on the same information. क्वेश्चन देखो, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट ऑल इंफॉर्मेशन। सभी इंफॉर्मेशन पहले हमने निकाल लिया था, इसलिए बाकी कैलकुलेशंस करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सो टू एनालाइज दिस initial information is a key for giving the answers in this particular question type. Okay, now let us go for the last two questions of this particular information. आई विल वेट फॉर योर आंसर। ये बहुत ही अच्छा है, ये डेफिनेटली इसके आंसर्स आने चाहिए आपको। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ये डेफिनेटली आने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 3 एंड द डीजल कार्स इन स्टेट 1? वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज, जो मैंने बोला था देखो, परसेंटेज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एवरेज पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, समटाइम्स मेयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बी आस्क्ड। What is the difference between number of petrol cars in state 3 and diesel car in state 1? So how many petrol cars in state 3? Yes, very good. How many petrol cars in state 3? State 3 mein there are 1000 petrol cars, and in diesel cars in state 1 there are 450. So if you subtract, do the subtraction of this, so 550, that is D is your answer. Very good. Now what is the average of total number of diesel cars in all the state together? Now average निकालना है तो डीजल का टोटल, डीजल कार का टोटल करना पड़ेगा। And how many states are there? There are 4 states. So 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कर लो सब, 800 plus 800, that is 1600, 1600 plus 1400 हो जाएगा 3000। So your required average will be equal to 3450 divided by 4 करना पड़ेगा। So 4 8 जा 32, remainder is 2, 4 6 जा, okay, remainder 2। So आपका कहीं ना कहीं आपका आंसर ऑप्शन बी आने वाला है, 862.5। दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन था यहाँ पे, ये इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप लिख लेते हो तो आपको आंसर करना ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं रहेगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन टाइप, से यस इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, ओके, नाउ आई एम डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा आपको उस पर सोचने के लिए, एंड ट्राई टू एनालाइज द डाटा एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। नाउ हियर वी गो, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू एनालाइज समथिंग। ओके, आई होप यू कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेंदी जरूर लगेगा, ओके, डेफिनेटली लेंदी लगेगा, तो लेकिन पढ़ने के बाद हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश करेंगे।
A survey was conducted about the population of a particular region having the working population of the 3 lakhs. Okay, so कितने लोगों का सर्वे किया है? सर्वे किया है 3 लाख लोगों का सर्वे किया है. And the information was collected about self-employed persons, casual wage workers, and regular salaried employees. जैसे लास्ट केस में हमने देखा सर्वे डीजल पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक कार के बारे में किया था. यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों के बारे में सर्वे किया गया है और सर्वे बोथ अर्बन एंड रूरल रीजन के लिए किया गया है. ओके. Now the self-employment is a key source of income in the both rural and urban areas, but it is more prevalent in the rural area, 56% of the rural population, than in areas 40% of the urban population. देखो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनालाइज अगर करना है तो हम चार्ट इस तरह से बनाएंगे. यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज रूरल और यहाँ पे हम लिख देंगे अर्बन. ओके, रूरल लिख दिया, अर्बन लिख दिया. ओके, नाउ यहाँ पे इनका पॉपुलेशन कितना है, रूरल का पॉपुलेशन कितना है वो लिख देंगे, अर्बन का पॉपुलेशन कितना है वो लिख देंगे. सो दिस इज वन चार्ट. नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है, सेल्फ एम्प्लॉयड. नाउ हियर व्हाट वी विल डू, we will take a casual wage workers, casual wage, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेगुलर सैलराइड. Okay, so this is what we have to understand. Okay, now कितना 56% of the rural population, 56% of rural population. Okay, and 40% of the 40% of urban population. Now यहाँ पे देखो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में है, दिस रूरल में कितना है, दैट इज 56% एंड दिस इज 40%. राइट, तो इसका नंबर निकालेंगे हम डेफिनेटली. और रूरल पॉपुलेशन इज 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. सो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? 3 लाख का 48% निकाल लो. 3 लाख का 48% अगर निकाला तो आपको मिलेगा 1,44,000. सो 1,44,000 अगर ये है तो इसमें से आप अगर 3 लाख में से 1,44,000 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 1,56,000, दिस विल बी द अर्बन पॉपुलेशन. This is the first very important information we got here, because this 48% of population is from the rural, then remaining 52% will be from urban. So इसका 52% आपका 1,56,000 आ जाएगा. Now 56% of 1,44,000 will be the self-employed. 40% of 1,56,000 will be the self-employed from the urban. परसेंटेज लिख लेते हैं पहले. रेगुलर सैलरीड वर्कर्स फ्रॉम द अर्बन एरिया इज 48%. ये 48% है, सॉरी ये वाला नहीं पार्ट, रेगुलर सैलरी वाला पार्ट है, रेगुलर सैलरी. ओके, सो दिस इज 48%, दिस इज 48%. नाउ whereas in rural, regular salaried in urban is 48% of the urban population, whereas in rural regular salaried was what, 12%. This is 12% only. Okay, so just read it, आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा. ड्यूरिंग द सर्वे द कैजुअल वर्कर्स वेर फाउंड मोर कॉमन इन द रूरल एरिया देन इन अर्बन एरिया. कैजुअल वर्कर्स इन द रूरल एरिया, दिस इज 32%, दिस इज 32%, एंड इन अर्बन पॉपुलेशन दिस इज 12%. यहां तक समझ में आया तन्वी? हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो व्हाट आई विल डू नाउ, अभी इनका परसेंटेज वैल्यूज निकालते चलो. ओके, परसेंटेज वैल्यूज निकालते चलो. सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वेजेस वाला एंड रेगुलर सैलरीड वाला हम निकाल लेंगे परसेंटेज. ओके, नाउ इफ यू आर फाइंडिंग द 56% का, इसका निकाल लो 56%. नाउ इसके लिए कैलकुलेशंस आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे. 56% इज 1440 मल्टीप्लाइड बाय 56. और ये कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपको 56 का टेबल पता नहीं है तो 56 को हम 7 into 8 इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं.
इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट कर लो इसको एंड जस्ट ट्राई टू डू दिस। ओके, so if you find 56% of 1,44,000, so the exact value is like this. ये calculations definitely आपको करने पड़ेंगे, there is no way out. I hope you are getting this, Tanvi. So this is 80,640. These are the 56% of this value. Now find 32% of this value. So 1440 into 32% अगर निकालना है, so this is 46,080. This value will be. Now 12% of this. Just find 12% of this. Then it will be 717280. Okay. Now find 40% of this value. 40% of 1,56,000. So इसका 40% निकालते हो तो this is 62,400. Now 12% of 1,56,000, 12% निकाल लो, so this value is 18,720, and find 48% of 1,56,000, that is 48%. So this value is 74,880. Now, once you got these values, your task is over. Now, what we will do, we will read the question और question पढ़ के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक का पार्ट अगर आपको समझ में आया होगा तभी तो say yes in the comment box. Okay. Oh, good. Now, let us go to the questions now. देखो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या रहा देखो, by what percent the number of self employed workers in the rural region is more than, अभी देखो पहले तो ये देख देख लो कि नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल रीजन कितना है। नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल रीजन सेल्फ एम्प्लॉयड है 80,640। 80,640 is more than self employed workers in urban वर्कर। अर्बन में कितने हैं 62,400। चलो सब्सट्रैक्शन कर लो इनका, 0, 4, 2, 8 कैरी 1, तो दिस इज 18240। और इसका कंपैरिजन आपको अर्बन के साथ करना है, तो ये दिस विल बी योर आंसर। सो जीरो जीरो कैंसिल हो गए। नाउ लुक एट दिस वैल्यू, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगभग 30% के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। नाउ इसका देखो 30 से अगर मैं इसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ ना तन्वी, तो मेरा आंसर 18,720 आना चाहिए, लेकिन ये उससे कम है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर 29.31 आना चाहिए। You should have that ability to estimate the answer. Okay. सेकेंड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आने वाला है, क्योंकि क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। रेशियो किसके बारे में पूछा है, अर्बन एंड रूरल वर्किंग पॉपुलेशन। सो हाउ मच अर्बन पॉपुलेशन, ये तो सीधा सीधा दे दिया। अर्बन पॉपुलेशन था आपके पास 1,56,000 एंड रूरल पॉपुलेशन था आपके पास 1,44,000। चलो ये तीन जीरोस कट गए, तीन जीरोस कट गए। नाउ बोथ आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद, या आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। 8 से डिवाइड अगर करोगे तो व्हाट यू विल गेट हियर। चलो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो 39 आएगा, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा। फिर से 3 से डिवाइड करने के बाद 13 as to 12, this has to be your answer, 13 as to 12, which is option C, which is option C। तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मैनेजेबल होंगे, और एक बार थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया आपको, व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, प्रैक्टिस इज द की। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशंस में आप थोड़ा सा परफेक्शन महसूस करने लगोगे। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। चलो लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, if the urban population of the region increase from 52% to 62%, तो डेफिनेटली ये पहले था 52% था, क्योंकि ये 52% क्यों था, क्योंकि आपका रूरल 48% था। ओके,
सो 52% से 62 56 हो गया. Then the self-employed remains same. Self-employed percentage remains same. Then what? Then the number of self-employed persons in urban area. Okay. Now देखो 56% मीन्स 4% बढ़ गया है. 3 लाख का अगर 56% अगर मैं निकाल लेता हूँ, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन सर्वे वॉज 3 लाख. 3 लाख का अगर हमने निकाल लिया, कैंसिल हो जाएगा ये. सो दिस विल बी 2 zeros, 3 zeros in fact. Now 3 6 are 18 carry 1. So this will be the total population now. 52 से 56 हो गया. हाँ, इसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड कितना परसेंटेज है? इन अर्बन इट इज 40%. सो इसका 40%, 10% ऑफ दिस इज 16800, 16,800. ये 10% वैल्यू हो गया. 40% वैल्यू निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 67,200 आना चाहिए, विच इज ऑप्शन डी. Now tell me, what is the total number of regular salaried persons of the region? Regular salaried person is इन दोनों का टोटल करना है, from the urban and rural दोनों से. अगर टोटल करते हो तो 0, 8 plus 8, 16, carry 1. So this is 1, carry 1, 2, uh, and that will be 9, carry 1 कर दो. 19,160, 92,160, that is option C. Okay, so this is the answer of the second question. देखो क्वेश्चंस उतने चैलेंजिंग नहीं है. डेफिनेटली क्वेश्चंस उतने चैलेंजिंग नहीं है अगर हमने इंफॉर्मेशन ठीक से पहले लिख लिया है, एनालाइजेशन अगर हो गया है तो. ओके. Now, let us try to answer these last two questions. Last two questions पे काम करेंगे. What is the percentage of regular employed in a rural region corresponding to the number of casual workers in the urban region? ये अच्छा क्वेश्चन है. देखो, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरी सैलरीड एम्प्लॉयड कितना है? 17,000, 17,280 है. इसको कंपेयर करना किसके साथ कंपेयर करना? कैजुअल वर्कर्स. कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन. So this is 18,720 multiplied by 100. लगभग आप देखते हो तो दिस वैल्यू अगर ये पूरा का पूरा होता तो 100% हो जाता. दिस दोज वैल्यूज, बोथ वैल्यूज आर वेरी क्लोज. वेरी क्लोज है तो आई विल गो विद 92.3% विदाउट डूइंग कैलकुलेशन. कैलकुलेशन न करते हुए हम इसके साथ जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन of the region of the self-employed in a rural region, and the 40% of the total population were self-employed. Then what is the ratio of rural self-employed to the urban self-employed? Now 60-40. Now 60-40 का ही रेशियो आपको लेके खत्म करना ही है. 60-40 का रेशियो अगर लेते हो तो that is your answer, 3:2, which is option B. Okay. So in this way, these two charts are totally based on the concepts of percentage. तो परसेंटेज के कंसेप्ट अगर आप ठीक से करते हो, एवरेज रेशियो, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक्स दैट ऑल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल स्किल्स. ओके. चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली एंड पोलाइटली. बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.